courage and bravery, peace and truth, faith and chivalry, unity of the people, constant movement and progress. Imagine all this represented by a piece of cloth that unites more than 1 billion people under one umbrella despite all their differences and diversities. As Member of Parliament Shashi Tharoor once said, the Indian idea is that a nation may endure differences of caste, creed, color, conviction, culture, cuisine, costume and custom, and still rally around a consensus that in a democracy you don't really need to agree except on the rules of how will you disagree. Hello Mind Warriors, this is Mind Wars Presents पिक्चर ऑफ द डे, जहां हम आपको बताएंगे एक हिस्टोरिक फोटो के पीछे की हिस्ट्री, मजेदार ट्रिविया और ऐसे किस्से जो आपने सुने नहीं होंगे। जैसे जैसे हम आपको इस पजल के पीसेस दिखाते जाएंगे, आपको गेस करना होगा कि ये कौन सा फोटोग्राफ है। सो वेलकम टू पिक्चर ऑफ द डे। Here is the first piece of the puzzle. Long ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. These are the words that echoed that night as the country was starting off on a new journey, as Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, said, "At the stroke of midnight, as the world sleeps, India will awake to life and freedom." Everybody in the parliament burst into applause. देश के लोगों ने पिछले कुछ महीनों में इतना कुछ सहा था, इंडिया के दर्दनाक पार्टीशन, कम्युनल राइट्स और ना जाने क्या कुछ, मगर आज ये सब भूलकर लोग इंडिया की आज़ादी का जश्न मना रहे थे। नेहरू जी ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। He also mentioned the pain of partition and the loss of life that it caused to the people. He urged Indians to unite and work towards uniting India and making it a glorious country. देश के जवानों को नेहरू जी का संदेश ये था कि वो मेहनत और लगन से काम करें ताकि पॉवर्टी और इग्नोरेंस से निकलकर इंडिया एक काबिल देश बन सके। अंत में उन्होंने भारत माँ से ये वादा किया कि देश के सभी नागरिक अपने देश की हमेशा रक्षा करेंगे। Now it's time to reveal the next piece of the puzzle. ट्रेड के लिए 1601 में इंडिया आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 सालों में धीरे धीरे इंडिया पर काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया था और 1874 में इस कंपनी को डिसॉल्व करके ब्रिटिश राज की स्थापना की गई, जिसकी मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर डायरेक्टली राज कर सके। अगले 60-70 सालों में ब्रिटिश राज ने भारत के सारे इंटरनल अफेयर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था और देश के रिसोर्सेज और देश के लोगों को बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे थे। This led to a rise of nationalism and the thought of an independent India without British rule was born. The Indian National Congress was formed in 1885 and leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel began to demand political and administrative rights for the people of India. 1920s में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के जरिए ब्रिटिश राज को इंडिया से निकालने की कोशिश की, मगर वर्ल्ड वॉर 2 में हमने ब्रिटेन का साथ दिया, ये सोचकर कि शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन खुद ही इंडिया से निकल जाए। फिर भी जब ब्रिटिश राज भारत में बना रहा तो 1942 में गांधी जी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। देश के हर इंसान का यही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। चलिए इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। The
The British were known for their divide and rule policy, and with the intention of creating a rift between Hindus and Muslims, they took help of a pro-British educationalist called Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan started giving speeches inciting Muslims and telling them that they are in the minority and they need to fight for their own nation. 1866 में उन्होंने पहली बार टू नेशन थ्योरी का आइडिया लोगों के सामने रखा, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदूज और मुस्लिम का कल्चर बहुत अलग है और वो दोनों साथ में रह नहीं सकते। धीरे धीरे ये भावना लोगों के मन में बढ़ने लगी और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1947 तक आते आते ब्रिटिश राज पार्टीशन का जहर घोलने में कामयाब हो चुके थे। 3 जून 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ इंडिया के पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया। इंडियन लीडर्स में से सिर्फ महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान ने अंत तक इस पार्टीशन का विरोध किया। बाकी लीडर्स ने वक्त के साथ इस पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। सरदार पटेल का कहना था कि देश के बंटवारे से उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर भावनाओं में बह जाने की जगह हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। Finally, Gandhiji had to reluctantly give in and Pakistan became a separate nation. Time to reveal another piece of the puzzle, and here it is. Now let us find out how Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India. 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा, ब्रिटिशर्स उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मगर उनको कांग्रेस कमिटीज ने 1940 में इलेक्ट किया गया था और उसके बाद किसी वजह से फिर कभी इलेक्शंस हुए ही नहीं। जब 1946 में फिर से कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस अनाउंस हुए तो गांधी जी ने मौलाना जी के री इलेक्शन के लिए साफ मना कर दिया और कुछ दिन बाद वो पीएम के पोस्ट के लिए नेहरू का नाम सजेस्ट करते हैं। Out of the 15 Congress committees around the country, 12 voted for Sardar Patel and 3 abstained from voting. When Gandhiji found out about the results, he told Patel to stand back and let Nehru go ahead. His reason was that Nehru would never agree to be second in command and the nation needed both of them. Sardar with his old school methods to handle things at home and Nehru with his youthful and visionary approach to handle foreign affairs. Sardar Patel respected Gandhiji and decided to withdraw his nomination. And thus it was decided that Jawaharlal Nehru would be the first Prime Minister of independent India. Time to see another part of the photograph. As a new nation, we had a new PM and a new cabinet. Now we needed a new flag, but the Indian flag had already been in development for more than 20 years. 1921 में पिंगली वेंकैया नाम के एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर ने गांधी जी को एक झंडा प्रेजेंट किया था। उसमें रेड और ग्रीन कलर के 2 हॉरिजॉन्टल बैंड्स थे और बीच में एक चरखा। रेड कलर हिंदूज को रिप्रेजेंट करता था और ग्रीन कलर मुस्लिम्स को, और बीच में बना चरखा स्वराज और सेल्फ रिलायंस का प्रतीक था। गांधी जी के कहने पर उन्होंने उन 2 बैंड्स के ऊपर एक और वाइट बैंड ऐड किया, जो कि दोनों धर्मों के बीच शांति का प्रतीक था। 1923 में नागपुर में जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे थे, तब हजारों लोग इस झंडे को पकड़े हुए थे। 1931 में इस फ्लैग को कांग्रेस का ऑफिशियल फ्लैग डिक्लेयर कर दिया गया, मगर रेड कलर को सैफरन से रिप्लेस कर दिया गया और व्हाइट बैंड को सैफरन और ग्रीन के बीच रखा गया। टू अवॉइड रिलीजियस कनेक्शंस, इट वाज सेड दैट द सैफरन रिप्रेजेंट्स courage and sacrifice. The white stands for peace and truth. Green was for faith and chivalry. सुभाष चंद्र बोस ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस झंडे का इस्तेमाल किया था, मगर उन झंडों में चरखा नहीं था। और आज़ादी से पहले इस फ्लैग में एक लास्ट चेंज आया, जब चरखे की जगह सम्राट अशोक का धर्म चक्र लगाया गया। उस दिन से आज तक इंडिया का नेशनल फ्लैग कभी नहीं बदला है। चलिए इस तस्वीर का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं।
इंडिया का फ्लैग सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है. It is a representation of our nation, and that is why it must be treated with utmost respect. The Indian flag code of conduct states the protocol that must be followed when handling the Indian flag. झंडे में भगवा रंग हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए. कोई भी फ्लैग या एम्बलम नेशनल फ्लैग के ऊपर नहीं आना चाहिए. अगर मल्टीपल फ्लैग्स लाइन से लगाए गए हो तो नेशनल फ्लैग सबसे राइट साइड में होना चाहिए. अगर किसी प्रोसेशन में फ्लैग यूज हो रहा है तो या तो फ्लैग फ्रंट ऑफ सेंटर होना चाहिए या फिर मार्चिंग राइट साइड पर. The flag should be flown over important buildings like the Rashtrapati Bhavan, Parliament House, Supreme Court of India, High Courts, etc. The national flag or any imitation of it cannot be used for business or professional purposes. And when the flag is taken down, it should be done so during the evening at sunset. अब इस तस्वीर का एक और हिस्सा रिवील किया जाएगा. आइए अब अपने तिरंगे के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे तिरंगे में कितने रंग होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 3, है ना? तिरंगे में तो 3 ही रंग होते हैं, राइट? रॉन्ग. हम अक्सर उस अशोक चक्र को भूल जाते हैं जो नीले रंग का है. तो हमारे नेशनल फ्लैग में 4 कलर्स हैं. Did you know that Madam Bikaji Kama was the first person to raise an Indian flag outside India? She revealed the Indian flag of independence in Stuttgart, Germany in 1907 while appealing for human rights, equality and autonomy from Britain. मगर ये फ्लैग पिंगाली वेंकैया के डिजाइन से काफी अलग था और इसमें रेड और ग्रीन के साथ येलो कलर था और सिंबल्स के तौर पर सन, मून और 8 लोटस फ्लावर्स थे. The first time the Indian flag left the earth and went into space was when Wing Commander Rakesh Sharma went to space. The flag was attached as a medallion on his spacesuit. The official Indian flag was to be made only out of hand-spun khadi, and using any other material was a punishable offense, but in 2022, the law was amended to include other materials and even machine-made cloth. इस बात पर गांधीवादी ऑर्गेनाइजेशंस और खादी उद्योग से काफ़ी अपोजिशन आया था क्योंकि ये खादी इंडस्ट्री के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ये है इस पजल का सेकंड लास्ट पीस. क्या आप जानते हैं कि गांधी जयंती, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे ही वो हॉलीडेज हैं जो पूरे देश के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मनाए जाते हैं. On Independence Day, the Prime Minister addresses the nation from the Red Fort as he talks about last year's achievements and discusses important issues. After that comes the tribute to the leaders of the Indian independence movement. This is followed by singing the national anthem, after which is the march past of the various divisions of the Indian Armed Force and paramilitary forces. इसके बाद आती है इंडिया के अलग अलग कल्चर्स और स्वतंत्रता सेनानियों की झांकियाँ. There are similar flag hoisting ceremonies held by the respective chief ministers of each state. And this is one day when all Indians around the country carry little flags and even use small flags to adorn their clothes as well as their surroundings. न्यूयॉर्क और दूसरे अमेरिकन शहरों में जहां इंडियन डायस्पोरा की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां 15 अगस्त को इंडिया डे के नाम से मनाया जाता है. And now for the final piece of the puzzle. And here is the picture of the day. Pandit Jawaharlal Nehru, as the first Prime Minister of independent India, publicly hoisting the Indian flag for the first time at the Red Fort. A truly historic occasion and the birth of New India. नेहरू जी को भारत का झंडा फहराने का ये मौका 17 बार मिला, more than any other Prime Minister. वैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुने जाने पर कई लोगों ने आपत्ति उठाई थी. उनका कहना था कि ये तिथि शुभ नहीं है और इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि सेलिब्रेशंस 14 तारीख की शाम को शुरू होगी और ठीक 12 बजते ही यानी कि 15 अगस्त को खत्म हो जाएंगे.
The celebrations ended with Nehruji's speech, which had since become known as the Tryst with Destiny speech and is considered one of the greatest speeches of the 20th century. Now, more than 75 years since that fateful day, it would be safe to say that with our standing as one of the emerging global leaders of the world, India has truly awakened. That's all for the picture of the day. तो माइंड वॉरियर्स, ये था हमारा आज का पिक्चर. कैसा लगा? था ना मज़ेदार? तो माइंड वॉरियर्स, अगर आप बढ़ाना चाहते हो अपनी नॉलेज का भंडार, तो जाइए माइंड वॉर्स ऐप पर और खेलिए अलग अलग टॉपिक पर क्विज रेस. हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और हिस्टोरिक फोटो के साथ राइट हियर ऑन माइंड वॉर्स. सो देखते रहिए पिक्चर ऑफ द डे. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies. और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now.